Yes, Ayushi. Sir, actually one doubt yesterday I asked you some. Yes, I will get back to you. Okay, sir. Okay. Okay. Good evening, everyone. So till now, what we had learned was about electron configuration. Can anyone tell me the definition of electron configuration? What do you mean by that? Electron configuration. What do you mean by electron configuration? The feeling of electron in various atomic orbital of an element, atom of element. Okay, the feeling of electron in various atomic orbital of an atom of element based on rules of feeling electrons in atomic orbital is called electron configuration. Electron configuration. Okay, the rules are: first one, Aufbau's Bau's principle. Okay, Pauli's exclusion principle, and third one, Hund's rule of maximum multiplicity. Maximum multiplicity. Okay, now tell me what is the statement of Aufbau rules. Quickly give me the answer. What is Aufbau rules? In the simple word, yes, Krishna. According to the principle, the electrons are filled in various orbitals in the order of increasing energies. Yes, the lowest energetic orbital first occupy. Once it is completely occupied, then only the electron goes to next higher energetic orbital. That is Aufbau rule. What is Pauli's exclusion principle, or what is its significance? Pauli's exclusion principle. Who will give me the answer? Yes, Krishna. According to the principle, no two electrons in an atom can have all the four quantum numbers same. Yes. Or you can say, in an orbital, maximum 2 electron can be accommodated by keeping their spin remain opposite to each other. Okay. And what is Hund's rule of maximum multiplicity? It gives us idea about the feeling of electron in degenerate orbital or isoenergetic orbital. So what we will do over here, right now we will learn electron configuration. Electron configuration of element.
Okay. So first we will write elements, then its atomic number, Z, electron configuration. Okay. So the first member is hydrogen. Okay, its symbol is H. Z is equal to 1. It has only one electron, so that electron will get enter into the first orbital, which is 1s. Hence electron configuration is 1s1. Okay. The next element is helium. Its Z is equal to 2. It has 2 electrons, so that 2 electron can accommodate in 1s orbital by keeping their spin remain opposite to each other. So the electron configuration is 1s2. Okay, this is noble gas. It has completely filled orbital. Is it clear? The third element, lithium, Z is equal to 3. Now 1s orbital can accommodate only 2 electrons. So the third electron will enter into the next higher energetic orbital. So after 1s, electron will enter into 2s atomic orbital. So the configuration is 1s2, 2s1. Now you can see in lithium how many atomic orbital you can see over here. Can anyone tell me? In lithium, how many atomic orbitals are there? How many atomic orbitals are there? Come on, look at the data and give me the answer. Nibi. 2 and 1. कौन सा? 2 and 1. You can say 1s and 2s. Okay. So what you can see over here, this 2s orbital, you can say it is outermost orbital. क्या बोलते हैं इसको? Outermost orbital, or the familiar word is valence orbital. ठीक है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस ऑर्बिटल, जो आउटर मोस्ट होती है वो, और उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या बोलेंगे इसको हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, तो आप कितने बोलोगे? कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1. बोलो, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द point that I am discussing right now? Yes. Okay. Yes. अब इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और सम ऑफ द क्वेश्चन आई हैव जस्ट सेंड 1 or 2 hours before. Okay. Write 4 set of quantum number for valence electron of lithium. कौन बताएगा मुझे? 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर. 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L, M, N, L, M एंड S की वैल्यू बतानी है. कौन बताएगा? Who will give me the answer? There always be an integrated approach.
जब भी हम थियरी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको भी कंसीडर करना पड़ता है ना? कैन एनीवन try the set of quantum number? चलिए चलिए, come on, you can do it. अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? देवदत्त। n equals to 2, l equals to 0, m equals to 0, and s equals to plus 1/2. Plus or minus, you can say anyone. Okay. Plus 1. So n is equal to 2 because it is present in 2s orbital. For s orbital, l is equal to 0. If l is equal to 0, m always be 0, and s can be either plus or minus half. Is it clear to all? Yeah. Okay. लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? फोर्थ, बेरिलियम। कौन सा आएगा? बेरिलियम। ठीक है, उसके लिए Z इज इक्वल टू 4, उसका मतलब है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे चले जाएंगे? फर्स्ट ऑर्बिटल में, बाकी के 2 दूसरी ऑर्बिटल में। ये 1s है, ये 2s है, तो ये 1s2 एंड 2s2 हो गया। ठीक है, एक और मेथड है। 1s2 की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो गई? हीलियम जैसी हो गई। हीलियम नोबल गैस है, तो हमारे पास एक और मेथड है। ब्रैकेट में अगर आप हीलियम लिख दोगे, मतलब हीलियम तक की कॉन्फ़िगरेशन इंटैक्ट है, उसके बाद 2s2 लिख दो, तो हीलियम 2s2, ये भी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? बेरिलियम की। ठीक है, और 1s2 2s2 भी लिख सकते हो आप। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए, बेरिलियम के बाद आएगा बोरॉन। कौन आएगा? बोरॉन। Z इज इक्वल टू 5। चलिए बताइए, सबसे पहले 1s 2s and 2p। तो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 1 ऐसा बोलना है हमें, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बोल के आप अरेंज करोगे तो मिस्टेक कम होगी। तो ये हो गया 2px1 हो गया, या 2p1 भी बोल सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2px1 और 1s2 2s2 2p1, और you can write helium 2s2 2p1, है ना? चलिए, यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बोरॉन कितने हैं बेटा? बताओ। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बोरॉन? कौन बताएगा? Who will give me the answer? Valence electron for boron. Number of valence electron. Raise your hand. देवदत्त। 3 3 है ना? कितने हो गए? 3।
कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, सबसे आउटर मोस्ट वाली ये ले लेते हैं। हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेनी है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है? n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 वाले सारे इलेक्ट्रॉन हमें लेने हैं। तो कितने आएंगे? 2s के 2 और 2p के 1, मतलब n इज इक्वल टू, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। ठीक है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 2p। ठीक है, चलिए यहां तक का कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर z, एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। चलिए 6 नंबर का एलिमेंट कौन सा आएगा? कार्बन आएगा। Z इज इक्वल टू 6, मतलब कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कैसे करोगे? तो 1s 2s उसके बाद 2p। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और हुंड्स का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। 1 एंड नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा एक और दूसरा, बाय कीपिंग देयर स्पिन रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2px, ये 2py। तो आप क्या लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2 और 1s2 2s2 2px1 2py1 और हीलियम 2s2 2p2। आप ये लिख सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 कार्बन के। कितने हुए बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 हुए। ठीक है, Ve मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करते रहेंगे। चलिए कार्बन के बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। Z इज इक्वल टू 7। अरेंज कैसे करना है? 1s 2s 2p की 3 ऑर्बिटल। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, 1 2। जैसा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7। 1s 2s 2px 2py 2pz। तो आंसर हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 और हीलियम 2s2 2p3। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर हो जाएंगे 5 नाइट्रोजन में। और ये 2p ऑर्बिटल हो गई ना, वो हाफ फील्ड हो गई। क्या हो गई बेटा? हाफ फील्ड। जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल आती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोली जाती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, जिसका Z इज इक्वल टू क्या है? 8। तो उसमें क्या होगा? 1s 2s एंड 2p के ऐसे 3। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सारी विंडो सीट कवर हो गई। अब पेयरिंग शुरू करो। तो पेयरिंग शुरू होगी तो क्या होगा? ये 8वां इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1s 2s और 2p का कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p4। और इसका हो गया हीलियम 2s2 2p4 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए। क्या हो गए भाई? 6। अगर आपको डाउट हो रहा है तो पूछते रहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? फ्लोरीन आएगा। Z इज इक्वल टू 9। 1s 2s
एंड 2p के 3 है ना। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं? 9 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब रिपीटेशन होगा 8 और 9। समझ में आ रहा है? ये 1s 2s 2p कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 और हीलियम 2s2 2p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फ्लोरीन के? 7 हो गए। कितने हो गए बेटा? 7। n इज इक्वल टू 2 वाले आपको कैलकुलेट करने। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए फ्लोरीन के बाद 10वें नंबर का इलेक्ट्रॉन अरे एलिमेंट आएगा नियॉन। Z इज इक्वल टू 10। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, बाद में 2s में, उसके बाद 2p वाले 3 डब्बे फिलअप करने हैं। चलिए 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। कोई भी गलती से भी ऐसा काम मत करे जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखो अभी मैंने अरेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी कभी भी आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे अरेंज करना नहीं है कभी भी। ठीक है, अगर ऐसा करने जाओगे तो गलती कर दोगे। 1 बाय 1 बाय द रूल आपको अरेंज करना है। 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और हीलियम 2s2 2p6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो क्या होगा? इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट ऑक्टेट। और जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो जो एलिमेंट होता है वो केमिकली क्या होता है? केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट। और इसीलिए इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो 1 से 10 तक के जो एलिमेंट है उसमें कितने नोबल गैस आए? 2। एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। बोलो अभी एडवांस वर्जन पता चला आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। अभी आपको KLMN यूज नहीं करना है। कौन सा यूज करना है? 1s 2s 2p वाला। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है बेटा? Anyone has any doubt? नहीं है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा एलिमेंट नंबर 11 टू 20। ठीक है, 30 तक के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें प्रिपेयर करने हैं। कंपलसरी आने ही चाहिए एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। इजी है। अभी आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, participate in the process. Element atomic number Z और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए 11th नंबर का कौन सा एलिमेंट होगा? 11th नंबर का सोडियम आएगा। Z इज इक्वल टू 11। अभी आप देखो 10 नंबर तक का नियॉन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नियॉन तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है।
मतलब नियॉन तक की, मतलब नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, ये कंप्लीट हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बताओ चलो 2p के बाद कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा? इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू विच ऑर्बिटल आफ्टर 2p? बताइए। s पर 3s1। कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? 3s। कौन से? 3s। तो चलिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल को शो करते हैं ऐसे, ये 3s वाला है। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? नियॉन तक 10 हो गए, अब 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? नियॉन 3s1। ठीक है। चलिए बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है कितना? 1। ठीक है। One. चलो सोडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? मैग्नीशियम। उसका Z इज इक्वल टू क्या है? 12। 12 यानी 10 प्लस 2। अब 10 तक तो क्या हो गया? नियॉन कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जाएंगे? एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये यहाँ पे 11वां इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 12वां इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई नियॉन 3s2। चलिए बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? Two. 2 हो गए। ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है अगर कोई पूछे तो? वैलेंसी कितनी है मैग्नीशियम की? Two. 2 है। 10th स्टैंडर्ड में आपने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। अब हर एक एलिमेंट जो है वो हम नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। हर एक एलिमेंट ट्राई करता है ऑक्टेट को अचीव करने का। तो अगर मैग्नीशियम को अपनी ऑक्टेव अचीव करनी है या स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है लाइक नियर बाय नोबल गैस, तो मैग्नीशियम का नियर बाय नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। तो नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए मैग्नीशियम क्या करेगा? आयोनाइज होगा। तो जब आयोनाइजेशन होगा तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? उतने, जिससे उसे नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन मिले। तो कितने हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर देगा और खुद के ऊपर चार्ज आएगा +2। बोलो समझ में आया? अभी आपको पता चलेगा Yes. कि क्यों मैग्नीशियम ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करता है, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस कौन सी हो जाएगी? देखिए मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2। मैग्नीशियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियॉन जैसी। तो नियर बाय नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव की, इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है बेटा? 2 है। चलिए मैग्नीशियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? एल्यूमिनियम। Z इज इक्वल टू क्या है? 13। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं उसमें? 13 इलेक्ट्रॉन। नियॉन तक कितने हो गए? 10। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, एंड 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा? 3p ऑर्बिटल में। लेकिन 3p के कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो यहाँ पे 11 नंबर का, यहाँ पे 12 नंबर का, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया 3p में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई नियॉन 3s2 3p1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3। बोलो किसी को डाउट है? No. नो। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा एटम आएगा? एलिमेंट सिलिकॉन। Z इज इक्वल टू क्या है? 14। कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं? 14। नियॉन तक कितने हो गए? 10। उसके बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3P. है ना। तो चलिए हाँ. अकोमोडेट करिए। 11 12 13
14 वाला कहाँ पे जाएगा, बाजू में जाएगा ऐसे, है ना। तो ये 3s है, ये 3p है, कन्फिग्रेशन हो जाएगी नियॉन 3s2 3p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, तो ये सारे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वो। डाउट है किसी को, सिलिकॉन के बाद कौन सा आएगा, फॉस्फोरस आएगा। ये सीक्वेंस भी आपको प्रिपेयर करने रखनी है। 15 नंबर का एलिमेंट फॉस्फोरस, है ना। छोटे बच्चे नहीं हो, अब जल्दी जल्दी से प्रिपेयर करो सारी चीजें। अगर आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में घर पे बोलना पड़े किसी को कि पढ़ने बैठो, तो छोड़ दो, आराम करो, है ना। दूसरा कुछ पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये बातें अब बड़े बच्चों को बार बार नहीं बोली जाती, अपना काम है, हमें करना ही पड़ेगा। चलो, फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन, नियॉन तक 10 कंप्लीट हो चुके, 11 12 13 14 एंड 15 हो गया। आप देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलती जुलती है, बताइए कौन बताएगा आंसर। नियॉन 3s2 3p3 configuration is similar to which element from first 10, बताइए कौन बताएगा। कृष्णा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन के भी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, और फास्फोरस के भी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जिसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, वो पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में आएगा, कॉलम में आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पीरियोडिक टेबल ही पढ़ने वाले हैं, उसमें पूरा डिस्कशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे होगा। चलिए, 15 तक हो गया था। अभी एलिमेंट, Z की वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए, 16 नंबर का एलिमेंट कौन सा आएगा, सल्फर। Z इज इक्वल टू 16, नियॉन तक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, क्या हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16th वाला पेयरिंग करेगा, ये पेयर हो गया, ठीक है। ये 3s है, ये 3p है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन 3s2 3p4। बोलो इजी है, अगर रूल पढ़ा है तो इजी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, कितने हुए, 6। सल्फर के बाद कौन आएगा, कौन बताएगा, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है। कौन सा एलिमेंट, क्लोरीन। Z इज इक्वल टू 17, 17 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन तक कंप्लीट, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p। अकोमोडेट कीजिए, 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 एंड 17। क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s2 3p5, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 7 हो चुके, है ना। अभी क्या आएगा, क्लोरीन के बाद नेक्स्ट नोबल गैस आएगा आर्गन। Z इज इक्वल टू 18, नियॉन तक की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद 3s और 3p के 3 ऑर्बिटल 1 2 एंड 3 अकोमोडेट करो, 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 एंड 18 पूरा कंप्लीट हो चुका। ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, S और P मिला के, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके बेटा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट
ऑक्टेट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट ऑलवेज किस में होगा? नोबल गैस में होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन 3s2 3p6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8. हो गए 8। तो ये हो गया हमारा नोबल गैस। जब से नोबल गैस आ गया है उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करो। अब तक हम नियॉन को रिप्रेजेंट करते थे, अब आगे किसको करेंगे? आर्गॉन को। Argon. अभी आर्गॉन के बाद कौन आएगा? पोटेशियम आएगा। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। Z इज इक्वल टू 19। कई बार लोग क्या करते हैं पता है? पोटेशियम को P बोलते हैं। फॉस्फोरस का P है, पोटेशियम का K है। ये सब याद रखो। नियॉन। चलिए और बताइए अब। आर्गन नहीं आएगा? आएगा ना, हाँ तो नहीं. वो मैं देख रहा था। गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग. है ना? चलो आर्गॉन लिख दिया, उसका मतलब क्या है? आर्गॉन का मतलब है नियॉन 3s2 3p6 तक की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब 3p के बाद कौन सा आएगा बताओ? 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होगा? 3p के बाद 4s आएगा। क्या आएगा बेटा? 4s। 4s. प्रिपेयर करो, घर पे जाके, घर पे ही हो, रीड करो, सीक्वेंस को तैयार करो। 4s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए? ये 18 तो हो गए आर्गॉन के। 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे? आर्गॉन 4s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1. 1, है ना? अब जल्दी से, आज एक ही मीटिंग करेंगे हम, ये कंप्लीट हो रही है, 1 मिनट का टाइम बचा है। ठीक है, पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम। फटाफट लेते हैं, अभी गुम हो जाएगी मीटिंग। आर्गॉन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी 4s में होगा, 1 और 2। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गॉन 4s2. 4s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2. 2। बोलो समझ में आ गया? ओके। Yes. चलिए, तो आज का जो मैंने डीपीपी सेंड किया है वो सॉल्व कर दो, बाकी का कल देखेंगे, है ना?